So next, second specialty polymer is a biodegradable polymer, and in that you need to know what is meant by biodegradable polymer, or sometimes they will ask in the exam, define biodegradation. So what is meant by biodegradable polymer? So polymer which can be converted into simple harmless gaseous products. So this is what simple conversion process, and what kind of conversion we are seeing here, that polymer is converted into what? Simple harmless gaseous products. How? By the action of enzymes. Who produced enzymes? By the action of enzymes of microorganism, and for biodegradation required water. So the process of conversion of a polymer into simple harmless gaseous products, and for that we required enzymatic action of a microorganism, right, in presence of water. So this is what biodegradable polymer, and same definition you can write for biodegradation. For that you have to start the answer by saying that the process in which, you have to write with process in which polymer converted into simple harmless gaseous products. Okay. Now, what are the key factors or components that play an important role in the process of biodegradation? So first component is a microorganism, and in microorganism you can write that biodegradation required microorganisms like bacteria, fungus. So bacteria, fungus produce enzyme, and that enzymes required responsible for biodegradation. Then second key factor, environment, and in that you can say that temperature, moisture, pressure, pH. So life of a microorganism depends on environmental conditions. So in the form of sentence you have to write, life of the microorganisms depends on environmental conditions like temperature, moisture, pressure. And if these conditions are suitable, then only microorganisms can grow, can survive. And once microorganisms survive, once they grow, then we can think about the process of biodegradation. So this is what the second factor. Third factor, nature of polymer, and in that nature of polymer you have to say that polymer should be hydrophilic. Hydrophilic means water loving, water attracting. As we seen in the definition, we required water for biodegradation. So polymer should be hydrophilic, means water loving, water attracting. Second thing, polymer chain should contain bonds. That bond should get easily hydrolyzed और ऑक्सीडाइज्ड. मीन्स पॉलीमर चेन में ऐसे बॉन्ड्स होने चाहिए, वो बॉन्ड्स राइट उसका आसानी से हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए. यानी कि पॉलीमर चेन में जो बॉन्ड्स है वो पोलर होने चाहिए, उसमें पोलैरिटी चाहिए, तब जाके उसका आसानी से हाइड्रोलिसिस होता है एंड ऑक्सीडेशन होता है. Third point you have to cover in the nature of polymer, that is a polymer should contain atoms like oxygen, nitrogen, sulfur. अभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, अगर वो पॉलीमर में रहेंगे तो बॉन्ड्स में पोलैरिटी आएगी. अगर पोलैरिटी आएगी तो उनका जो नेचर है राइट वो हाइड्रोफिलिक होगा. तो पॉलीमर चेन में कौन से एटम्स चाहिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर पॉलीमर चेन में. दूसरी बात, पॉलीमर चेन में एरोमेटिक रिंग्स नहीं होने चाहिए. अगर एरोमेटिक रिंग्स रहेंगे तो एरोमेटिक रिंग्स आसानी से ब्रेक नहीं होते, तो पॉलीमर में एरोमेटिक रिंग्स नहीं चाहिए. तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको नेचर ऑफ पॉलीमर में कवर करना है. हाइड्रोफिलिक चाहिए, बॉन्ड जो है आसानी से हाइड्रोलाइज ऑक्सीडाइज होने चाहिए. एटम्स कौन से चाहिए पॉलीमर चेन में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर टाइप के एटम्स राइट, एंड एरोमेटिक रिंग्स नहीं चाहिए. नाउ बायोडिग्रेडेशन का रेट जो है कब बढ़ेगा कब कम होगा, जैसे कि अभी हमने देखा नेचर ऑफ पॉलीमर उसी के ऊपर डिपेंड है. क्या है? रेट. रेट डिपेंड है हाइड्रोफिलिक नेचर के ऊपर राइट. अगर हाइड्रोफिलिक नेचर बहुत ज़्यादा है तो बायोडिग्रेडेशन का रेट भी ज़्यादा होगा.
सेकंड एमॉर्फस नेचर, अगर पॉलीमर का नेचर अगर एमॉर्फस है, राइट, एमॉर्फस मटेरियल सॉफ्ट रहता है, वीक रहता है, राइट, तब बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस फास्ट होगा। थर्ड, साइज ऑफ पॉलीमर, तो पॉलीमर का साइज जो है अगर वो छोटा है, स्मॉल साइज पॉलीमर है, तो उसका डिग्रेडेशन फास्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्रोसेस कॉस्टली है, एंड जो पॉलीमर प्रोड्यूस हुआ है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, कम है। सो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कॉस्ट उसका हाई है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसका क्या है, लो है, राइट। यहाँ पे एग्जांपल है प्रिपरेशन, एक प्रिपरेशन है PHBV, दैट इज अ बाइपॉल, इट इज एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बहुत बार MCQ में भी पूछा है। PHBV इज ए एग्जांपल ऑफ डैश डैश पॉलीमर, और उल्टा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सो आपको याद में रखना है PHBV, क्योंकि PHBV जो है वो एग्जांपल है, उसका लॉन्ग फॉर्म कोई नहीं पूछेगा, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट हाइड्रोक्सी फैलेरेट, ओके। तो प्रिपरेशन का सिंपल रिएक्शन, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करो, आपको 2 मोनोमर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सो ग्लूकोज प्रोड्यूस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी फैलेरिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी फैलेरिक एसिड, एंड उन दोनों का अगर आप पॉलीमराइजेशन करोगे, उन दोनों का बोले तो ब्यूटेरिक एसिड एंड फैलेरिक एसिड, जिसको हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो आपको मिलेगा PHBV, दैट इज व्हाट, द बाइपॉल। Dear students, in exam mostly question will be there on the structure of bipole, तो आपको स्ट्रक्चर निकालना है, प्रिपरेशन नहीं लिखना है। तो अभी बी स्पेसिफिक, राइट, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, यू आर सपोज गोइंग टू राइट द आंसर। आपको स्ट्रक्चर पूछा है तो आपको स्ट्रक्चर लिखना है, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, राइट। स्ट्रक्चर सिंपल है, ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर देखिए ऑक्सीजन कार्बोनिल, दूसरे ब्रैकेट के अंदर देखिए ऑक्सीजन कार्बोनिल, यू कैन मेक कॉमन ब्रैकेट और यू कैन राइट 2 ब्रैकेट, नो इशू। सो ऑक्सीजन कार्बोनिल के बीच में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट इफ यू सी देन यू कैन सी CH3CH2, एंड सेकंड ब्रैकेट में आप देख सकते हो CH3CH2 CH2, यानी कि दोनों ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन CH2 कार्बोनिल, ऑक्सीजन CH2 कार्बोनिल, यानी कि दोनों ग्रुप सेम ही है, बस उसको साइड ग्रुप जो अटैच किया है, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में CH3 अटैच किया है, एंड सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में CH2 CH3 अटैच किया है, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट में मिथाइल एज अ साइड ग्रुप एंड सेकंड में इथाइल एज अ साइड ग्रुप, बाकी चीज़ें कॉमन है। आप देखो थोड़ा, ऑक्सीजन कार्बोनिल के बीच में है CH2, ऑक्सीजन कार्बोनिल के बीच में है CH2, ओनली साइड ग्रुप फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में मिथाइल ग्रुप है एंड सेकंड में इथाइल ग्रुप है, ओके, और एन टाइम्स करना है। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ PHBV। देन प्रॉपर्टीज में आपको याद में रखना है फेमस वर्ड, फेमस यानी कि यानी कि इट इज अ फ्लेक्सिबल, यम यानी कि इजी टू मोल्ड, एंड स यानी कि सॉफ्ट। सो फ्लेक्सिबल, मोल्ड एंड सॉफ्ट, these are the 3 properties of biodegradable polymer. So it is a soft, right, can be mold easily, and it is a flexible. Then applications, again one sentence you have to keep in mind, right। एक फार्मर है जो खेती कर रहा है, सो यहाँ पे आप सेंटेंस याद में रखो, शेतामध्ये यानी कि ॲग्रिकल्चर, शेतामध्ये काय, मल्चिंग नेटिंग, मल्चिंग मीन्स कव्हरिंग ऑफ सॉइल, and netting means covering of entire crop. सो शेतामध्ये मल्चिंग नेटिंग आणि फळांना पॅकेजिंग करून, शेतामध्ये मल्चिंग नेटिंग अँड फळांना पॅकेजिंग करून पोरगं गेलं मेडिकलमध्ये, कशाला, ड्रग्ज घ्यायला, मेडिसिन्स घ्यायला, पण ड्रग्ज मेडिसिन घेऊन काही झालं नाही, म्हणून तो गेला डॉक्टरकडे, तो डॉक्टर म्हटला करावं लागेल ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन। सो शेतामध्ये मल्चिंग नेटिंग आणि फळांना पॅकेजिंग करून पोरगं गेलं मेडिकलमध्ये, कशाला, ड्रग डिलेवरी यानी की बॉडीमध्ये मेडिसिन्स घ्यायला, पण त्याने काही झालं नाही, म्हणून डॉक्टर बोलले करावं लागेल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, राइट। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड से सेंटेंस बनाना है,
Mulching netting, so you write first application, it is used in mulching and netting purpose. Second application you can write it is used for packaging purpose. Then third application, it is used in the medical field for drug delivery system. And last application, it is used in organ transplantation. Okay, so keywords you keep in mind, and by taking help of keywords you can frame the sentences. So mulching, netting, packaging, medical for what? Drug delivery, and last one, organ transplantation. So this is what about the biodegradable polymer definition, then factors responsible for biodegradation, then rate of biodegradation, then we see in the preparation of bipol with structure, then properties of a biodegradable polymer, and last one just now we seen applications of biodegradable polymer. Hope you understood. Thanks for watching.